Hare Krishna. We are on Canto 1, Chapter 1, Text 4. So ये जो हमारा अध्याय है चैप्टर है दिस बाय द मुनियों की जिज्ञासा और क्वेश्चन बाय द सेजेस. सो आज हम लोग चर्चा करेंगे चौथे वर्ष पे. सो लेट अस बिगिन. नैमिषाक्षेत्रे सौनकादाय सत्रं स्वर्गलोकाय सहस्रसामम् आसथ नैमिषे शैत्रे रसाया सोनकादय सत्रं स्वर्गलोकाय सहस्रसामम् आसथ नैमिषे शैत्रे रस्याया शोनकादय शत्रं स्वर्गलोकाय सहस्रसामम् आसथ. Yes, read the shloka. Hare Krishna. Asta, would you like to read the shloka? नैमिषे निमिषे क्षेत्रे रसाया सौनकादया क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र आसता. Okay, word to word meaning. Naimashi, in the forest known as Naimisharanya. Animesha Shaitre, the spot which is specially a favorite of Vishnu, who does not close his eyelids. Rashaya, sages. Shonaka Adaya, headed by the sage Shonaka. Shatram, sacrifice. Swargaya, the Lord who is glorified in the heaven. Lokaya, and for the devotees who are always in touch with the Lord. Sahasra, 1000, Samam, years, Asata, performed. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Yesterday we discussed the third verse. So today we are on the fourth. Once in a holy place in the forest of Naimisharanya, great sages, headed by the sage Shaunaka, assembled to perform a great 1,000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees. तो श्रीमद् भागवतम को एक्चुअली नैमिषारण्य वहाँ पे भी रिसाइट किया गया था. दैट इज द फर्स्ट टाइम इट वाज मतलब परीक्षित महाराज के बाद में नैमिषारण्य में the Bhagavatam was recited in front of like thousands of rishis were sages was assembled there gathered to hear the Bhagavatam only. कोई कई ऋषि आए थे और ये 1000 सालों तक मतलब भागवतम का श्रवण हुआ था. और आजकल हम लोगों के पास एक आधा घंटा नहीं होता है भागवतम पढ़ने के लिए सुनने के लिए. बट अगर देखा जाए तो पहले के 1000 वर्षों तक मतलब परीक्षित महाराज के पास तो था ही 7 दिनों का समय और 7 दिन उन्होंने 24/7 ही gave to hear and observe himself in Srimad Bhagavatam. And here in Naimisharanya, the Bhagavatam was heard for 1,000 years. And here we people, we don't even have the half an hour to give to Bhagavatam to hear or to read Bhagavatam. So we should learn from here that this is the scripture. What is said here means the satisfaction of the Lord and his devotees. So the Lord is satisfied when we hear his messages or his pastimes. So Bhagavatam is one way to relish his pastimes. In the purport, Prabhupada has said, the prelude of Srimad Bhagavatam was spoken in the previous 3 shlokas. Now the main topic of this great literature is being presented. तो पहले 3 श्लोकास में बताया गया पहले श्लोका में कि हाउ कृष्णा तत्व के बारे में बताया गया है. पहले श्लोका में जन्मादि अस्या मीन्स कृष्णा इज द ओरिजिन, ही इज द फर्स्ट सीड. फ्रॉम हिम एवरीथिंग इज कमिंग एंड ही इज द सुप्रीम पर्सन. और सेकेंड और थर्ड में देन इट टॉक्स अबाउट कि हाउ दिस Bhagavatam is not containing anything that is any religious activities that is motivated by material means. So Bhagavatam उन चीजों के बारे में बात नहीं करता है, किसी कर्म कांड सेक्शन के बारे में बात नहीं करता है. It directly talk about the transcendental subject matter which directly connects us with Krishna. And it says it talks about the highest truth that is distinguished from the illusion for the benefit of all the society. And it says Bhagavatam is the only Purana, it is Amala Purana, and it is the nectarian, it's a ripened fruit that is given by Vyasadeva in his maturity. And it is spoken by Shukadev Goswami. ऐसे इसकी पैरेट का जो होता है, पैरेट जब होता है ना, पैरेट का बीक रेड कलर का होता है, जब वो एक पके हुए फल को टच करता है तो उस फल का जो रस है वो और ज्यादा इनहांस कर जाता है. तो सिमिलरली इट वाज स्पोकन बाय सुखदेव गोस्वामी हु इज अ लिबरेटेड सोल, और जिनके जन्म के बाद में कुछ ज्यादा, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब सुखदेव गोस्वामी वाज लिबरेटेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि क्या होता है जनरली जब बच्चा पैदा होता है तो कई संस्कार किए जाते हैं, उसको इनिशिएशन दिया जाता है, टीचिंग्स दी जाती हैं, ऐसा करो वैसा करो. नो, बट सुखदेव गोस्वामी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वाज लिबरेटेड एंड ट्रांसेंडेंटल सोल. सो व्हेन ही केम आउट ही डायरेक्टली
came to means he started studying the means learn Bhagavatam from his father Vyasadev, and then spoke the Srimad Bhagavatam. So he was liberated. So he is like that Shuka, and moreover, he is the parrot of Radharani. So that if from his mouth, the Bhagavatam, this nectarian juice, fruit, has been touched, so it becomes more nectarian as we studied. So in the three verses of Bhagavatam, जो पिछले तीन verses थे, उसमें हमने यही चर्चा किया. First, Krishna is the supreme, Krishna तत्व के बारे में हमने जाना. Then we studied little glories of the Srimad Bhagavatam, that it is the only scripture needed and it is faultless and it doesn't contain anything karma kand section or talks about something that is materially motivated. Now it directly takes us to transcendental subject matter and connects us with supreme personality of Godhead Krishna. So that we studied. Now अभी इसका जो एक्चुअल है मेन टॉपिक है दैट इज बिगनिंग फ्रॉम दिस वर्स. इस वर्स से एक्चुअल में ये स्टार्ट होगा कि कैसे भागवतम स्टार्टअप हुआ और किस तरह से बोला गया. सो नाउ we are studying. So Srimad Bhagavatam, after its first recitation by Srila Shukadeva Goswami, was repeated for the second time at Naimisharanya. So first time Srimad Bhagavatam किसने सुनाई थी? सुखदेव गोस्वामी जी ने. किसको सुनाई थी? परीक्षित महाराज को. ठीक है. कल हम लोगों ने एक चीज आई थिंक yesterday or day before previous class we discussed in that thing also, if the speaker is potent and the listener is potent, then the fruit is fructified. So यहाँ पे देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी is a potent speaker. He is a perfect speaker, bona fide speaker. And disciplic, कल हम लोगों ने ये भी देखा था, disciplic succession में हमें भागवतम सुनना चाहिए. And Shukdev Goswami in a disciplic succession, because from the Krishna Narada Muni brought this भागवतम from spiritual world, gave it to व्यासदेव, और व्यासदेव जी ने इसको सुखदेव गोस्वामी जी को आगे दिया, और सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज का. लेटर ऑन इट गॉट फॉरवर्डेड अगेन इन disciplic succession. ठीक है, तो आगे वो disciplic succession में आया है. So it is totally authorized. And first time it was spoken by Shukadeva Goswami. Second time the Bhagavatam was spoken in Naimisharanya. Okay, Naimisharanya is the forest where the whole many sages were gathered there for the sacrifice, and there they heard Srimad Bhagavatam. ठीक है, और कितने सालों तक? 1000 वर्षों तक. For the 1000 years. Here in the Kali Yuga we don't even have, हमारा 100 years का भी लाइफ स्पैन नहीं है. सेड कि बोला जाता है कि 100 वर्ष का कलयुग के मनुष्य का लाइक लाइफ स्पैन है, बट वी डोंट इवन हैव 100 years. So here the Bhagavatam was spoken for 1000 years. As I was telling yesterday, or I don't remember, but I was telling these things कि when the initial days the classes were happening, जैसे गौर गोविंद महाराज का क्लास होता था या महाविष्णु गोसाई महाराज का क्लास होता था. So the classes or राधा गोविंद महाराज का क्लास, it just went on. Bhagavatam class just went for 2 or 3 hours. Like that, it doesn't come to an end, because this is how the nectarian Srimad Bhagavatam is. It is so nectarian and nobody wants to stop it. In our ISKCON, that's why the Prabhupada has made it compulsory that every day in every temple there should be 1 hour class on the Srimad Bhagavatam. So Bhagavatam हर दिन हमें पढ़ना चाहिए. ठीक है, आगे जैसे यहाँ पे बोला गया, तो फर्स्ट टाइम इट वाज स्पोकन बाय सुखदेव गोस्वामी टू परीक्षित महाराज, सेकंड टाइम इन नैमिषारण्य. ठीक है. So in the Vyavita Tantra, it is said that Brahma, the engineer of this particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed at a particular place known as Naimisharanya. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो ब्रह्मा जी हैं, he is the engineer of particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed at particular place known as Naimisharanya. कि जितने भी यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट जहाँ पे बताया जा रहा है, that is the Naimisharanya. Similarly, there is another reference to the forest of Naimisharanya in the Varaha Puran, where it is stated that by performance of sacrifice at this place, the strength of demonic people is curtailed. So नैमिषारण्य की यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन बताई जा रही है उस जगह का, कि वहां पे अगर कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करता था तो कोई भी जो डिमोनिक लोगों का स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक हो जाता है. एंड दस ब्राह्मणस प्रेफर नैमिषारण्य फॉर सच सैक्रिफाइशियल परफॉर्मेंसेस. अब जैसे हम लोगों के लिए, हम लोगों को अगर भक्ति करनी हो तो विच प्लेस वी प्रेफर? हम लोगों के लिए सबसे कंड्यूसिव प्लेस क्या रहेगी भक्ति में वृद्धि करने के लिए? द होली प्लेसेस, है ना. आइदर यू गो टू वृंदावन धाम or to Mayapur Dham or any of the ISKCON temple that is a dham for us. So वहाँ पे हमारी भक्ति क्या होती है? ज़्यादा enhance कर जाती है, क्योंकि atmosphere वैसा होता है, spiritual atmosphere है. It is quite very conducive for a devotional life. So इसीलिए हमें बीच-बीच में धाम जाते रहना चाहिए. We should visit the holy places and meet the holy sages. So that's how our growth in bhakti increases. So similarly क्या है नैमिषारण्य, इस sages में नैमिषारण्य क्या है? एक ऐसा atmosphere है जहाँ पे मतलब इट स्ट्रेंथन्स देयर स्ट्रेंथ, मतलब जो डिमोनिक पीपल है उनकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है.
it is more the spiritual place, and it enhances one's devotional life. So the sages were performing, that's why they were performing the sacrifice in sacrificial things, in doing the sacrifices in the Naimisharanya place. Okay, so Naimisharanya is a pilgrimage place, it said. Okay, so it says the devotees of the Lord Vishnu offer all kinds of sacrifices for his pleasure. अब जैसे भगवत गीता में भी मेंशन्ड है कि हु इज द चीफ बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस, कौन है? विष्णु है। ठीक है, तो हम जो भी यज्ञ करते हैं ना, तो किसको जाता है? भगवान विष्णु को जाता है। अब ये कहा जाता है कि यज्ञ की जो अग्नि है वो भगवान का मुंह है, मतलब इट्स लाइक अ माउथ ऑफ माय विष्णु, बिकॉज वट एवर वी पुट इन द अग्नि इट गोज टू विष्णु। सो यज्ञपति कौन है? विष्णु है। ठीक है, सो डिवोटीज whatever they do, as Krishna said, stated in the Bhagavad Gita, भगवान कृष्ण भगवद गीता में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं। he has said that यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति सत् मत यत। so whatever you do, whatever you give away, whatever the charity you perform, आप जो भी करते हो, do as an offering to me, that what pleases Krishna। ठीक है, क्योंकि कृष्णा ने ऐसा बोला आप ये सब मुझे करो, तो that means that pleases Krishna। so devotees of Lord Vishnu offer all kind of sacrifices for pleasure of विष्णु। तो जो भी वो कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, whatever they do that for the pleasure of विष्णु। अब कलयुग में कौन सा सेक्रीफाइस रिकमेंडेड है? संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। सो संकीर्तन मीन्स सम टोटल, मीन्स कमिंग टुगेदर एंड डूइंग द कीर्तना, सो दैट इज संकीर्तना। coming together and performing the sankirtana yagya, so chanting of the holy names. So in the Kali Yuga, the people, we devotees, we perform the sankirtana yagya, we chant the holy names, we go on the street, we distribute the books, we distribute the prasadam, okay, and we distribute these literatures, as now the marathon is starting up, बुक मैराथन स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा वितरण रहेगा किताबों का। तो दिस इज एन सेक्रीफाइसेस एंड वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। सो वी आर चैंटिंग आल्सो, दैट इज आल्सो फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, so that is also sacrifice. How the book distribution is a sacrifice, how we can understand, I'll tell you कि जैसे कलयुग में, अभी कलयुग का बिगनिंग ही हुआ था, तो you all know about लॉर्ड बुद्धा, है ना? लॉर्ड बुद्धा ने नॉन वायलेंस सिखाया था, he stopped the animal sacrifice. So उस समय एनिमल सेक्रीफाइस हुआ करता था, मगर क्या किस चीज के लिए हुआ करता था एनिमल सेक्रीफाइस? खैर इट वाज ऑफ टॉपिक, बट ये सेक्रीफाइस की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग इट। नहीं तो उसका चर्चा यहाँ पे नहीं है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट इट इज देयर, सो आई एम जस्ट टेलिंग। ठीक है, so कलयुग में क्या था? in the beginning, the brahmanas, to see how much qualified they are, to check the power of their recitation and the mantra, their qualification, they used to do the animal sacrifice. Animal sacrifice in the sense, उनको मार के खाया नहीं जाता था, बल्कि उनको रिजुविनेट, मीन्स दे यूज टू गेट द न्यू बॉडी, और या उनको डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म मिल जाता था, या उनको नया शरीर मिल जाता था, जो भी उनका पुराना होता था। सो दिस वाज एनिमल सेक्रीफाइस। मगर लेटर ऑन पीपल जस्ट यूज दिस वैदिक इंजंक्शन इन अ रॉन्ग वे, काफी चीजें डिस्टॉर्टेड होगी, तो लोगों ने एनिमल सेक्रीफाइस खुद के खाने के लिए करना शुरू किया। सो दैट मीन्स, बट एक्चुअल सेक्रीफाइस क्या होता था? जानवर का मतलब सेक्रीफाइस करके तो उसको ह्यूमन फॉर्म दिया जाता था। तो सिमिलरली हाउ द बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सेक्रीफाइस इज लाइक you says there is a द्विपद पशु also, two-legged animal। ठीक है, two-legged animal कौन होता है? As if we see what is the similarity between man and animal, एक human being और जानवर में क्या similarity है? There are 4 things that is common in human beings and animal. Asta, will you tell me what is the common things between animals and human beings? What are the 4 things that is common in animals and human beings? Yes. eating, meeting, sleeping, and defending. Yes, eating, mating, sleeping and defending, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना। So these things are common in human beings and animals। ठीक है, so ये चीजें हम लोगों में क्या है? कॉमन है। so अगर एक मनुष्य की अगर एक गतिविधियां, एक्टिविटीज, देखो एनिमल के लिए तो यही चीज है ना, उसको बाकी उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड नहीं है, तो वो यही करेगा, बिकॉज दैट इज व्हाट इज नेचर इज, बट दिस इज नॉट ह्यूमन बीइंग्स नेचर। मतलब उसको इस कॉन्शियसनेस इज मोर डेवलप्ड, ही हैज टू डू मोर देन दिस 4 एक्टिविटीज। ठीक है, टू इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ, टू नो अबाउट वन सेल्फ, सो लाइक दैट वे। ठीक है, और अगर कोई मनुष्य अगर सिर्फ इन 4 गतिविधियों के सेंटर अराउंड ही रहता है, कि इन्हीं के अराउंड रहता है, तो वो उस व्यक्ति को मनुष्य नहीं बल्कि द्विपदा पशु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विपदा पशु, टू-लेगेड एनिमल। ठीक है, इट इज सिंपली अ रॉयल सूट बूट पहन के ही इज जस्ट अ टू-लेगेड एनिमल। ठीक है, अब इन एनिमल को ह्यूमन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पुस्तक वितरण करते हैं।
So pustak, when we give them a book of Srila Prabhupada, this Bhagavad Gita, the Bhagavatam, that is like ahuti. यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, स्वाहा, we do the आहुति. किसकी आहुति डल रही है? उस व्यक्ति की आहुति डालते हैं हम यज्ञ में, संकीर्तन यज्ञ में. We give him the book and we put in the ahuti, and after reading that book, this person turns into a human being. Understanding? So that's why the book distribution is also yagya. Okay, okay, we'll move further. So devotees does everything for the pleasure of Lord. Whatever kind of sacrifices they perform, they do it for the pleasure of Lord. Okay, the devotees are always attached to the service of the Lord, where fallen souls are attached to the pleasure of material existence. So this is a very थिन लाइन यहाँ पे, बहुत थिन लाइन है यहाँ पे. अगर आप लोग देखो तो व्हाट इज सेड हियर, यस, कि डिवोटीज आर ऑलवेज अटैच्ड टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड, कि जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा के प्रति आसक्त रहते हैं. और जो फलन आत्मा है, जो कंडीशन सोल है, वो किसके प्रति आसक्त रहती है? माया के. माया और कृष्ण साथ साथ नहीं चल सकते. आइदर यू चूज कृष्णा और यू चूज माया. कहते हैं ना, दो कश्ती में सवार नहीं हो सकते. अगर आप दो कश्ती में सवार हो तो डूबोगे ही डूबोगे. ठीक है, सो वो नहीं करना है. सो इफ यू सी, आपकी आसक्ति किसके प्रति है? आपकी आसक्ति भगवान की सेवा के प्रति है, या आपकी आसक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए है? देन यू कैन टेल वेदर यू आर अ डिवोटी और यू आर अ नॉन डिवोटी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी थिन लाइन. सो डिवोटीज आर ऑलवेज अटैच्ड टू द सर्विस ऑफ लॉर्ड, कि व्हेनेवर द सर्विस ऑफ लॉर्ड. अब जैसे कल तुलसी विवाह था, ठीक है, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ कार्तिका. सो मेनी ऑफ यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस फेस्टिवल. सो अभी जैसे जो भक्त है, तो अभी कार्तिक में बहुत सारे फेस्टिवल्स रहे, जैसे दीपदान करना हर दिन, ठीक है, दामोदर अष्टकम पढ़ना और भागवतम रिसाइटेशन करना. मेनी फेस्टिवल्स केम, गोवर्धन पूजा केम, देन गोपाष्टमी केम, एंड नाउ दिस तुलसी विवाह केम. ठीक है, सो जो भक्त हैं वो सारी चीजें, वो आसक्त रहेगा इन चीजों के प्रति. ही विल ऑब्जर्व ऑल दिस फेस्टिवल एंड ही विल लाइक प्रॉपर डिसअपीयरेंस डे था. सो कितने सारे फेस्टिवल इसी महीने में आए. They would have observed, they would have cooked the feast for the Lord, for the pleasure of Lord, and chanted the holy names and engaged other people also. So like that they have done, है ना, ऐसा किया होगा उन लोगों ने. So this is the devotees does. और कई लोगों का होगा, अरे क्या ये सब करना, चलो अपना इंद्रिय तृप्ति खा लो जो भी है. So that's a non-devotee mentality. But devotee takes everything for the pleasure of Lord. तो भगवान की कृपा के लिए और अपनी वृद्धि के लिए, अपनी भक्ति में वृद्धि के लिए कार्य करता है. So in Bhagavad Gita it is said that anything performed in the material world for any reason other than for the pleasure of Lord Vishnu causes further bondage for the performer. Yes, क्योंकि जो भी कार्य है कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो क्या है? बंधन का कार्य बन रहा है. अभी जैसे हम लोग भगवद गीता में पढ़ ही रहे हैं कि like we studied in the 4th or 3rd chapter also, and in the 4th chapter कि we have to perform every activity and we have to mold our activity in such a way that is वो कृष्णा कॉन्शियस हो. ठीक है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते हैं, that becomes the cause of bondage because it becomes the karma. ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है ना, वो कर्मा है. तो कर्मा है तो एक्शन रिएक्शन है. एक्शन रिएक्शन है तो अगर आप अच्छा करो बुरा करो, आपको उसको एंजॉय या सफर करने के लिए भौतिक जगत में तो आना पड़ेगा. तो इसका मतलब वो आपको बांध के रख रहा है ना भौतिक जगत में. मगर ऐसा कार्य है जो आपको भौतिक जगत से बांधता नहीं है, वो कार्य है भगवान की सेवा. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था, हम लोग वर्किंग प्लेस में जाते हैं, वी डू द जॉब, वी डू द वर्क, बट इफ वी ऑफर द रिजल्ट्स इन द कृष्णा सर्विस, दैट इज फाइन, देन यू आर नॉट बाउंड. ठीक है, अब जैसे भोजन का ही है, हम लोग भोग मतलब वी एट फूड, ठीक है, वही भोजन है. अगर वो जैसे अब बोला जाता है कि नॉन वेज जानवरों को मारे, तो ऐसे पेड़ों को भी मार रहे हो, यू आर मर्डरिंग अ पोटैटो और अ कैरेट, यू नो, आप कर रहे हो, उनका भी ऐसा कर रहे हो. बट इफ वी ऑफर, अब कृष्ण हैज सेड इन द भगवद गीता स्पेसिफिकली व्हाट ही सेड. तो मैं कह रही हूँ भगवद गीता इज अ मैनुअल फॉर ह्यूमन बीइंग. एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द भगवद गीता, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू. सो कृष्ण ने सब कुछ क्लियर किया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. तो वी जस्ट हैव टू फॉलो द भगवद गीता. तो इसलिए भागवतम, पहले आप भगवद गीता अच्छे से पढ़िए, देन study this Bhagavatam, that will you will relish a lot. So Bhagavad Gita Krishna says patram pushpam phalam toya, means he talks about the vegetarian food. तो सिर्फ vegetarian भी नहीं, that he says offer me with love and devotion. उसमें दो ingredients और डालने हैं, love and devotion. So when we offer it becomes transcendental food. तो फिर उसमें कोई कर्मा नहीं है, because Krishna is above karmas. ही इज ट्रांसीडेंटल, तो उनके संपर्क में जो आएगा वो भी ट्रांसीडेंटल हो जाएगा. सो जो भोग हम लगाते हैं, प्रसादम रूप में भगवान की कृपा आती है. जब हम उसको ग्रहण करते हैं, हमारी चेतना शुद्ध होती है और हम लोग क्या है, वो कर्मा भी नहीं लगता. सो दैट इज नॉट अ बॉन्डेज. बट इफ यू जस्ट ईट फॉर आवर इंद्रिय तृप्ति, तो वो कर्म बंधन बनेगा. ठीक है, सो इट इज enjoined therefore that all act must be performed sacrificially for the satisfaction of Vishnu and his devotee. This will bring everyone peace and prosperity. तो खुशहाल जीवन का सीक्रेट क्या है? One should perform everything for the satisfaction of Vishnu.
as the peace formula is given in the Bhagavad Gita itself. Sorry, I'm quoting again and again Bhagavad Gita, but this is what is in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita में already कृष्ण ने सब कुछ डिटेल में हमें बता रखा है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. तो जब हमें वो पता होगा तो भागवतम हमारे लिए समझ पाना बहुत आसान हो जाता है. अब जैसे पीस का पीस फॉर्मूला कृष्ण गिवन इन द भगवद गीता 5:29. व्हाट ही सेज, Bhoktaram Yagatapsam Sarvaloka Maheshwaram. When we understand that who is the enjoyer, Krishna is the enjoyer, everything is meant for his enjoyment, तो तब हमारी इंद्र तृप्ति की बात ही नहीं आती है. हमें पता है कि सब कुछ भगवान के लिए ही बना है, तो सब कुछ उन्हीं को अर्पण करना है, फिर हम उसको ग्रहण कर सकते हैं एज अ प्रसाद के रूप में. सो डेट विल ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. बट इफ वी थिंक, अब हम लोगों में जब हम अपने लिए करते हैं भगवान को नहीं, अब कोई भी चीज हम अगर किसी को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हम उस चीज को खुद भोग करना चाहते हैं, है ना. कोई भी वस्तु है, हम क्यों किसी को क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंजॉय आवर ओन सेल्फ. हम खुद उसको एंजॉय करना चाहते हैं. वी थिंक दैट मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका प्रोप्राइटर हूँ. और अगर हमें पता चल जाए कि नहीं, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, कोई और प्रोप्राइटर है, तो हम उसको सब कुछ देंगे ना. बट आई थिंक हमारे मन में फॉल्स कंसेप्शन रहता है कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, ये चीजें मेरे को बिलोंग करती है, तो ये मेरी ही है और मेरी इंद्रिय के लिए ही है. ठीक है, तो जब ये आई मी इन माइंड रहता है ना, तो फिर हम उस चीज को दे नहीं पाते हैं किसी को. and that is like, it is like attachment, and that is like bring the वो क्या है, बॉन्डेज क्रिएट करेगा. बट अगर देखा जाए, जैसे भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं कि सब कुछ मेरा है भाई, तुम लोग बस यू आर जस्ट गेटिंग बिकॉज ऑफ माई मर्सी, बट एवरीथिंग इज माइन. I am Bhoktaram Yagatapsam, I am the enjoyer, I am the supreme proprietor, you are not, you are just my servant. तो जब मैं ये चीज समझ पाए कि सब कुछ कृष्णा का है, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, तो इसका मतलब कोई भी वस्तु जब हमारे सामने आएगी, हमें समझ में आएगा ये मेरी नहीं है, ये कृष्णा की है, तो मैं पहले उनको दे देता हूँ, उसके बाद जो प्रसाद रूप में मिलेगा आई विल टेक इट. देन वन बिकम पीस, देन वन विल बी इनटू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो दिस इज द लिटिल सीक्रेट बिहाइंड टू बी हैप्पी लाइफ. ठीक है. Then it says is the great sages are always anxious to do good to the people in general, and as such the sages headed by Shaunaka and other assembled at this holy place of Naimisharanya with a program of performing a great and continuous chain of sacrificial ceremonies. So क्या है, अब जो great sages हैं, जैसे जो संत महात्मा होते हैं, वो हमेशा जीवात्माओं का उद्धार करना चाहते हैं. They are very compassionate towards. अब like श्रीला प्रभुपाद है, 12 वर्षों में वो कितना कुछ करके गए हमारे लिए, इतने ग्रंथ हमारे लिए छोड़ के गए हैं, एक सोसाइटी हमारे लिए क्रिएट करके गए हैं, एक पूरा प्रॉपर ब्लूप्रिंट और एक प्रॉपर गाइडलाइन, हमें एक पूरा मैप देके गए हैं कि आप किस तरह से उसको फॉलो करते हुए गोलोक आ सकते हो. ठीक है. अब जैसे आप एक गेम खेलते हैं, वीडियो गेम, ठीक है, अगर आपको वजह से आता है कि आपको कुछ ट्रेजर वहां पे हंट करना है, यू हैव टू गेट सम ट्रेजर फ्रॉम सम प्लेस. सो अगर आपके पास एक नक्शा हो, मैप हो, और एक पर्सन हो जो आपको गाइड कर दे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना उस रास्ते को ट्रैक करना. अगर आपके पास नक्शा नहीं है, मैप नहीं है, आप यू विल बी लाइक wandering here and there if you don't have the map where to go. And if the person is there to guide you, so it will be very easy for you to get the treasure. So similarly, to get this treasure of Krishna prema, the sages, like those who are always anxious to do the good for the people, Srila Prabhupada is one of that acharya in the world history that he has given us the whole map through his Bhagavad Gita and the Bhagavatam, and he has given us these books through his Vani. He has left his Vani for us, the instructions, has given us the all guidance that how we can, and he has left us with his representative, pure representative, कि जिनकी गाइडेंस में इस नक्शे को इस्तेमाल करते हुए, भगवत गीता भागवतम को देखते हुए, we can go back to our real home, that is Goloka. So this is the acharya or the great sages. They always wanted to do good for the general people. Though हमारा कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं है ना उनके साथ, हमारे कोई ताए चाचा तो नहीं ना लगते कि सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे हमारे लिए, इतना बड़ा ट्रेजर हाउस छोड़ के जा रहे हैं कृष्ण प्रेम का हमारे लिए. बट द थिंग इज वी ओनली हैव टू एक्सेस दैट. ठीक है. सो हमें उसको एक्सेस करना है. इस प्रकार, तो जैसे नारद मुनि ही शोड मर्सी टू नलकुबेरा एंड मणिग्रीवा. ठीक है, उनको भी उन्होंने कृपा दिखाई, उनकी कृपा से भगवान के दर्शन हुए और भगवान की कृपा मिली, है ना. तो उस प्रकार से द सेजेस, दे ऑलवेज वांटेड टू डू गुड फॉर द जनरल मास. ठीक है. तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए दे all the sages were assembled in the place Naimisharanya with the program क्या perform headed by Shaunaka Rishi, who is the leader of them, and to perform continuous chain of sacrificial ceremonies. इसीलिए हमारे इस्कॉन में भी जगह जगह पे संकीर्तन किया जाता है, भक्तगण है वो बाहर स्ट्रीट्स पे जाते हैं, हरिनाम करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं. That is for the
this is Sankirtan Yagya, na? This is also Yagya. They are also performing Yagya for the benefit all people. So this is how in ISKCON also the devotees are performing Yagya, going out on the street, distributing the books, doing the Harinam Sankirtana for the benefit of all the living entities. So this is what they are thinking about the general people. So forgetful men do not know the right path for peace and prosperity. अब हम लोग forgetful है ना, हमें नहीं पता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है. We don't know until we study भगवत गीता and भागवतम, है ना. सो हमें नहीं पता कि सही चीज क्या है पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए. सो हाउ आर द सेजेस नो इट वेल. तो जो व्यक्ति विजडम में है, जिसके पास ज्ञान है, वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है. एंड देयर अगर कोई देखा जाए भौतिक दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि में भी जब हम लोग एक करियर पाथ हमें चूज करना होता है, तो समटाइम्स वी गो टू द काउंसलर्स. ठीक है, हम काउंसलर्स की गाइडेंस लेते हैं कि अच्छा मेरा ऐसा ऐसा इंटरेस्ट है, मैंने ये किया, तो मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए. व्हाई वी गो टू द काउंसलर? बिकॉज वी ट्रस्ट दे नो बेटर. उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है करियर के बारे में, ज्यादा पता है कि कौन सा करियर अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है. सो दैट्स व्हाई वी अप्रोच देम टू टेक सम गाइडेंस, इजंट इट. बट रियल में ऐसा होता है ना. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द काउंसलर्स या मेंटर्स होते हैं, तो हम लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं. ठीक है, उनसे सीखते हैं बिकॉज वी नो दे नो मच, they know more than us. So similarly in the spiritual path also we are very ignorant. हम लोग अज्ञानी है ना. We don't know anything, what is right, what is wrong, what will lead us to the peace and prosperity and what is not. So that's how. But the sages who are having the wisdom and the knowledge, हमारे counselor mentor कौन से sages है. So they know everything. Therefore for the good of all men they are always anxious to perform act which may bring about peace in the world. तो इसलिए सेजिस को पता है क्या सही है, क्या गलत है. तो इसलिए वो जितने भी कार्य हैं वो इस तरह से करते हैं कि विश्व भर में शांति और प्रेम आ सके. ठीक है. दे आर सिंसियर फ्रेंड्स टू ऑल लिविंग एंटिटी. दे आर सूरत. दैट्स प्रभुपाद कि अगर आपने लेटर्स देखे हैं, प्रभुपाद ने जब भी लेटर्स लिखे हैं, सो एट द एंड ही हैज रिटन योर एवर वेल विशर. कैसे प्रभुपाद ने साइन किया है उसको? योर एवर वेल विशर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. एसी भक्ति वेदांत स्वामी. सो प्रभुपाद हैज साइंड एज योर एवर वेल विशर. सो सेजेस आर एवर वेल विशर. ठीक है, वो हमारे क्या है? वेल विशर्स हैं. दे आर आवर फ्रेंड्स, दे आर नॉट आवर एनिमी. तो इफ दे से समथिंग सो वी शुड फॉलो दैट. ठीक है. सो क्या बोला है आगे? They are sincere friend to all living entities at the risk of great personal inconvenience. They are always engaged in the service of Lord for the good of all people. अब शीला प्रभुपाद ने भी ये देखो, ये सारी चीजें ना हमारे सामने. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि नैमिषारण्य में क्या सेज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन सी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आवर शीला प्रभुपाद, बिकॉज वो तो हमारे सामने है ना. नैमिषारण्य आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं. सेजेस आपने देखे नहीं देखे, कोई बात नहीं. बट प्रभुपाद तो हमारे फ्रंट में है. ये डिवोटीज हमारे फ्रंट में. रशियन डिवोटीज जो हैं सोवियत संत में, जहाँ सोवियत स्टेट में, यूएसएसआर में है, सो वहां पे प्रचार इतना आसान नहीं था. अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी हो सोल्टेड ब्रेड, तो यू शुड हैव सीन दैट थिंग कि हाउ द डिवोटीज हैव टेकन सो मच रिस्क. मतलब जेल में जाके, मतलब इट वाज लाइक अ ग्रेट टॉर्चर फॉर देम. अनंत शांति प्रभु जी थे, like who got initiated from Srila Prabhupada in a few days, and he took up this process. और वहां पे पुस्तक वितरण करना जैसे एक ड्रग को स्मगल करते हैं ना, ऐसे चोरी चोरी किताबें वितरण होती थी वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी. और इतना टॉर्चर करती थी डिवोटीज को कि डिवोटीज को जेल में डाला जाता था, और उनको इतना मतलब ड्रग्स दिया जाता था, मेंटल शॉक दिया जाता था. एंड दे वर लाइक, वो बेचारे ब्रेड से बीड्स बना के उस पर जप किया करते थे. ये देखो हाउ मच दे हैव डन. So this is in front of us कि how the devotees have taken so much pain. I have seen the drama, seriously what a struggle. Yes Astra Matri, salted bread, if you can read the book you can understand. और प्रपात की ही अगर आप बायोग्राफी देखो, so how much प्रपात it is. एक 70 साल की आयु में इंसान रिटायर होकर घर पे बैठता है, बट एक 70 वर्ष की आयु में प्रपात एक कार्गो शिप, जो एक मालवाहक जहाज होता है, एक ट्रेवलिंग जहाज भी नहीं है, मालवाहक जहाज है, उसमें जाके इतना स्ट्रगल देख के 40 दिन का यात्रा एक ओल्ड पर्सन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड 2 हार्ट अटैक कितना पेनफुल है, एंड देयर इज नोबडी टू केयर अबाउट हिम. एंड ही वेंट टू द प्लेस जहां पे कोई नहीं था. हाउ मच रिस्क Prabhupada has taken for all of us, and how much like Soviet, जैसे सोवियत स्टेट की मैं बता रही हूँ, यूएसएसआर में the devotees to preach. अभी तो वहां पे इतना preaching है, now it's like preaching is open up there, कि अभी तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, the Russian devotees are doing so much nice things. बट वहां पे वो सेटअप करने के लिए कितना तकलीफ हुआ है. किताबें कैसे खुद छापना, लिखना, प्रिंट करना, उसको बनाना, इस तरह से किताबें स्मगल की जाती थी, क्योंकि रशियन पीपल दे आर गुड इन रीडिंग. मम्मा आप फिर मुझे अभी डिस्टर्ब कर रहे हो, मैंने बोला आपको, मैंने अभी मेरे को छोड़ दो अभी 2 मिनट. सो सॉरी.
So that's how much risk they have taken up. So in the Sankirtan movement also जब किताबें वितरण करते हैं डिवोटीज तो कितना कुछ उनको सुनना पड़ता है. कई बार तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं, but they're doing it for the welfare of all of us. So Srila Prabhupada की एग्जांपल हमारे सामने है, how much struggle he has gone through. So for us people, and we have no personal relation with him. हमारा कोई इतना पर्सनल नहीं है, बट बिकॉज ही फेल नो, दिस इज फॉर द गुड फॉर द ऑल द पीपल एंड दिस इज अ सर्विस टू द लॉर्ड. कि भगवान की सेवा है इन जीवात्मा को वापस उन तक वापस लेके जाना. कहते हैं ना कि अगर कोई पेरेंट से बच्चा बिछड़ जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति उस बिछड़े हुए बच्चे को अपने माँ बाप से मिला दे, तो वो पेरेंट उस बच्चे के कितने कृतज्ञ रहते हैं ना. कि मतलब उस व्यक्ति के कितने कृतज्ञ रहेंगे कि इसने मेरे बिछड़े हुए बच्चे को मुझसे मिलवा दिया. तो सिमिलरली वी हैव फॉरगॉटन अबाउट लॉर्ड. We don't know about we didn't remember anything about our father, supreme father. हम भूल चुके हैं, but Krishna is very anxious to have us. And this that acharyas like spiritual master like Srila Prabhupada and our Guru Maharaj and all the Vaishnavas, they are bringing us back to our supreme father. So they are doing this great service to our supreme father, and for that they are taking a great risk हमारे उद्धार के लिए, है ना. So we should be very grateful. So this is how. So it says they are sincere friends to all living entities. तो sages and the Vaishnavas are there are sincere friend. बाकी कोई हमारे sincere friend नहीं है जो हमारे हमारे हमें हमें material world में entangle रखते हैं. No, they are not our true friends. Our true friend is one who is taking us back to God and helping us to becoming Krishna conscious, helping us to connect with our supreme father. So they are our true friend, not other person. They are always वो एक motivated रहेगा वो relation, है ना. बट दिस इज नॉट. एंड एट द रिस्क ऑफ ग्रेट पर्सनल इनकन्वीनियंस, कौन हमारे लिए इतना रिस्क लेता है? कोई नहीं लेता. अपने इधर अपने नहीं लेते हैं, इधर देखो. बट दीज आर द ट्रू वेल विशर्स. So they are always engaged in the service of Lord for the good of all people. Lord Vishnu is just like a great tree, and all other, including the demigods, men, siddhas, charana, vidyadharas, and other living entity, are like branches, twigs, and leaves of that tree. By pouring water on the root of the tree, all the parts of the tree are automatically nourished. जैसे मैंने बताया था कि कृष्णा जो सुप्रीम पर्सन है वो वृक्ष की तरह है. अगर उनको हम पूजा करते हैं तो हमें किसी अलग से देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जड़ में पानी जाता है तो सारी जगह चला जाता है उस प्रकार से. ठीक है. सो ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स व्हिच आर डिटैच्ड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. अब जो देखो, अब वृक्ष है, अगर उसमें से कोई जो ब्रांच है वो डिटैच्ड है, वो टूटी हुई है, तो क्या वो नरिश हो पाएगी? नहीं. तो जो उस वृक्ष के साथ लगी है वो नरिश हो पाती है ना. तो उसी प्रकार से जैसे ये मेरा हाथ है, अगर ये मेरी उंगली यहाँ से डिटैच हो जाए, निकल जाए, तो क्या ये कुछ काम कर पाएगी अकेले? नहीं. जब तक ये मेरे हाथ में इट इज यूजफुल, बट द मोमेंट इट गॉट डिटैच्ड इट इज ऑफ नो यूज, है ना. तो उसी प्रकार से जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं, वी आर हैविंग सम prosperity, some peace in our life, some bliss in life. But if we are not, we are detached, so there is nothing in our life to live for. So similarly, human society, when it is detached from personality of Godhead, like detached branches and leaves, is not capable of being watered. And one attempting to do so is simply wasting his energy and resources. So कोई व्यक्ति है, जब सोसाइटी भगवान के सेंटर्ड अराउंड नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो सोसाइटी में कोई कितना भी भला अच्छा क्यों ना कर ले, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वहां कुछ नहीं होने वाला ढंग का. सो वी हैव टू बी सेंटर्ड अराउंड आवर लाइफ टूवर्ड्स गॉड और कृष्णा. ठीक है. द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक सोसाइटी इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, and all its plans which are being made by atheist leader are sure to be baffled at every step, yet they do not wake up to this. अब जैसे यूएनओ है, ठीक है, सोवियत सॉरी, जैसे एक सोसाइटी है हमारे मटेरियल वर्ल्ड में भी, कि सभी स्टेट्स, सभी कंट्रीज को एक साथ रखना, उनका मीटिंग होता है कि कैसे शांति रहे, अमन शांति रहे, पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे. अपने प्लान्स बनाएंगे, बट दे डोंट वांट टू ब्रिंग गॉड इन द सेंटर. दे वांट एवरीथिंग. राम राज्य चाहिए मगर बिना राम के चाहिए. ऐसे कैसे आएगा भाई? राम राज्य बिना राम के नहीं आ सकता. राम होंगे तो राम राज्य आएगा, राम नहीं होंगे तो राम राज्य नहीं आएगा. तो आप कितने ही आप शांति दूत भेज दो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, until the life is centered around God, there cannot be peace, because you are detached from your root. When you're detached from your root, how you're expecting you will be nourished? आप उस वृक्ष की शाखा वृक्ष में लगे ही नहीं हो तो वो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी? सो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू दैट वृक्ष ना, उस पेड़ से कनेक्ट होना पड़ेगा. सो एथिस्टिक लीडर दे ट्राई टू मेक सो मेनी प्लान्स एंड ऑल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बट नथिंग गोइंग टू वर्क until the people are coming to God centered life. ठीक है, कोई कहीं पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाला. So, okay, in the last it says, in this age, the congregational chanting of the holy names of the Lord is the prescribed method for waking up. As I said, the Sankirtan Yagya is the recommended for Kali Yuga.
The ways and means are most scientifically presented by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. An intelligent person may take advantage of his teachings in order to bring about real peace and prosperity. तो अगर हमें सच में real peace and prosperity चाहिए, so we have to be taking up this process and spreading the glories of this process and spreading this message of Bhagavad Gita and Bhagavatam. When one come to know I am not this body, I am soul, there will not be any egos. जब ईगो ही नहीं रहेगी, क्लैश नहीं रहेगी, then we come to know that there is only one supreme father and we all belong to him, then everybody act like, oh, they are my brothers and sisters. And that brings the peace and prosperity. We have to work for that supreme person, then everybody engaged in the for the pleasure of that supreme person, then there won't be any fights and the wars, but otherwise it will be there. Okay, so Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more specifically later in the text. So नैमिषारण्य में सेजेस इकट्ठे हुए हम सबके वेलफेयर के लिए शौनका ऋषि के अंदर, वहां पे भागवतम अभी बताया जाएगा कि दे आर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस for us, and what was the detail that will be going through the further verses, आगे क्या हुआ, कैसे चल रहा था, so that we will study tomorrow. ठीक है, आज के लिए इतना ही है. So if you want real peace and prosperity in your life, so please be connected to your root. And who is the root? Krishna. So please connect it to the root, then you will be nourished and you can feel the bliss and joy in your life. Otherwise, there is no hope in the material world. Okay, material world is a miserable place. In miserable place there is always misery, no happiness. ऐसे दुखल्याम, दुखों का घर है ये, दुखी मिलेंगे, सुख नहीं मिलेगा. If you want sukh, then connect with the supreme person, your original root. Okay, so okay, we will be stopping here. So any of you having any comment or any question or any realizations, so आप लोग बोल सकते हैं. अगर किसी को कोई प्रश्न है या कुछ आप कुछ पॉइंट ऐड अप करना चाहें या आपका कुछ रियलाइजेशन है, so please do share, or if nothing then we will be stopping. Yes, Hare Krishna. Yes, any of you having anything to say? We have few minutes. इसे कुछ कहना है? Please say yes or no, so that I got to know. Yes, No, Asta. Mataji. Okay, you No, don't have no. anything. Yes, Pooja Matri, do you have anything to say? आपको कुछ बोलना है या पूछना है? हाँ, यही था कि ना मतलब जी हमने कल भी भगवत गीता में पढ़ा था ना कि ये जो पॉइंट आप बोल नहीं रहे थे Yes. कि जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग आवर रियल पोजीशन यू नो देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद इट, एंड लेमेंटेशन की तो फिर बात ही नहीं है. ये चीज हमने कल भाई Yes, भगवत गीता में if भी you पढ़ी. just know our real position, first of all, who is the supreme? Krishna is the supreme. And what is my relation with the supreme? I am the servant. And if you just know this thing, it becomes very easy to live a very peaceful life. Then we do everything for the service of Lord. So we have to understand our constitutional position. So that really helps us to understand that who is the supreme person or किनको please करना है. As says, everything is meant for the pleasure of Lord Vishnu. सो वी हैव टू फर्स्ट, उसके लिए ये भी तो जाना है ना कि मैं दास हूँ भाई, मैं प्रोप्राइटर नहीं हूँ. सो अगर हम लोग ये मान के चले मैं प्रोप्राइटर हूँ, तो फिर हम भगवान को कुछ दे ना पाएंगे. देन वी थिंक इट्स मेंट फॉर मी. सो दैट्स हाउ. ओके, यस, एनीथिंग एल्स? Okay, so if nothing, we'll be stopping here. So let's chant 3 times Hare Krishna. So please contemplate on this verse again. इस वर्स पे दोबारा से कंटेम्पलेट कीजिएगा, इसको दोबारा पढ़िएगा, प्रयास कीजिए. और कोई प्रश्न रहेगा आप कल पूछ सकते हैं, या कुछ अगर आपके मन में कुछ आएगा तो बता सकते हो कल भी. ठीक. सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंपल डिवोटीज की जय. थैंक यू सो मच. सी यू ऑल इन द भगवद गीता क्लास. का टाइमिंग 3:30 से 4:30 का है. तो जो लोग अवेलेबल, दोज हु आर फ्री और वांट टू इनवाइट देयर फ्रेंड्स, दे कैन. हम लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर ऑन द वर्स 4. सो हम भागवतम के साथ साथ चल रहे हैं, टेक्स्ट 4. सो वी आर स्टडीइंग 5th चैप्टर कर्म योगा इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टेक्स्ट 4. सो टाइमिंग इज 3:30. ठीक है, दोपहर को 3:30 से 4:30 तक. हरे कृष्णा. सी यू ऑल टुमारो और इन द आफ्टरनून मे बी. हरे कृष्णा एवरीवन.